So your next test will be on 6th December 2020. That will be a subjective test in which you will be required to write the paper. The question answer format will be there. आर्या को बड़ा टेंशन आ रहा है सर, लोएस्ट मार्क्स भी बता ही दो एक बार के. लोएस्ट बेटा 34-35 से कम कुछ नहीं है. 30 is the lowest. Out of all those who have submitted, 30 is the lowest mark. और यही अपेक्षा थी मुझे, मतलब इससे नीचे आ ही क्या सकता था. जिसने जेन्युइनली बहुत खतरनाक मिस्टेक्स की हैं उसी को लोएस्ट मार्क्स आ सकते हैं. Well, anyways, it is, see, when it comes to the objective based tests, it becomes the kind of situation wherein you your random understanding is checked, that whether you have attended the sessions regularly or not, whether you have read your text or not, that is what is checked in that. Your expressions, your narrations are not checked in that. And what I want to confirm with is your expressions and narrations, that how do you write your answers. And for that purpose, we'll be having the next test. That will be a serious test. That will be on 6th of December. Again, will be around 40 to 50 marks, nothing more than that. And like this, we'll be having the multiple of the tests being conducted on a recurring basis so that you get the confidence on the subject. ये क्या होता है ना, OCM जैसा सब्जेक्ट जब हम लोग क्लास में बैठे होते हैं ना, हमको ऐसे लगता है कि अब तो सब कुछ आ रहा है. Like we have referred the text, we have understood the things. On the other day, one of the student had sent me the paper, sir please cross check this paper. 12th का भी मैंने टेस्ट दिया था उसी दिन पे. And likewise the test of 12th OCM is there on the upcoming Sunday also. 6 December पे उनका भी टेस्ट है. तो that person got 40 out of 60 marks in the subjective test, whereas when I had conducted the objective test for them, he had got full marks. Now why the difference comes, you make the mistake in expressions, you make the mistake in narrations. अभी जब आप distinguish between लिखोगे तो you cannot write it in typical 10th style. 10th में जैसा लिखा करते थे, ये ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं होता है, if you are writing the distinguish between. So here that thing will change, and that's where the difference will come, and that is what I want. You need to improvise yourself, and that's why we'll be having that subjective test. So that will be on 6th of December. Anyways, the detailed discussion on that will happen later on. Let me come ahead now to our next part of chapter number 3. That is, we were talking about the small scale industries. We have already talked about what small scale industries are. We have talked about their definitions. Today, we have to start talking about the importance of small scale industry. क्यों होने चाहिए? क्या जरूरत है हमको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की? अरे भाई, अगर सबके सब टाटा, बिरला, रिलायंस हो गए तो हमारा देश तो ट्रंप को पीछे लेके चला जाएगा. अब तो जो बाइडेन, that will surely be happening, and that's not possible as such. हर कोई कैपिटल सेक्टर में बढ़ नहीं सकता, क्योंकि हर कोई अगर मोदी हो गया तो हर किसी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, राइट और नॉट? And that's why we need to understand the importance of the small scale industry, because ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज ही आगे चल के बड़ा बिजनेस करती हैं. एक बड़ी इंडस्ट्री, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस. इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री having the strength of employees to the extent of 10,000 only in Pune. 10,000 employees in one unit only. आप जरा रिवर्स वे से सोचते हैं, यही अगर कोई स्मॉल स्केल टेक कंपनी होती, एकदम छोटे लेवल की कोई टेक कंपनी है ऐसा हम लोग अगर अज्यूम करते हैं,
तो ये छोटे लेवल की जो टेक कंपनी है, इसमें मान लो एक ओनर है, उसने 4 बंदे रखे हुए हैं, only 4 people is what he is having. Like that, in the place like Pune, we are having say 1,000 tech companies, and if you check it out across the country, जिसमें सिर्फ एक ओनर और 4 एम्प्लॉइज हैं। मैं छोटी बहुत बहुत मतलब अल्ट्रा छोटी टेक कंपनी की बात कर रहा हूँ, मतलब जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, लोकल लेवल पे सर्विसेज देते हैं, दोस काइंड ऑफ टेक कंपनीज इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लाइक दैट, ऑन द टोटलिटी बेसिस, अगर देश के लेवल पे चेक करते हैं हम लोग, पूरा कंट्री लेवल पे, देयर मस्ट बी एट लीस्ट 10 लाख सच कंपनीज। 10 लाख कंपनीज में एवरेज अगर 4 लोग अपॉइंट होते हैं तो 40 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जॉब मिला हुआ है, ये याद रखें। That is not possible for all the big companies put together also. And that's why you need the small scale industry. अगर कॉकरोच को मारना हो तो बेगॉन या फिर पैरागॉन, ये थियरी तुमको पता होगी शायद। हमारे देश में पैरागॉन ज्यादा चलता है बेगॉन की जगह। एक समय होता था जब हमारे देश में बेगॉन वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट ब्रांड फॉर द पर्पस ऑफ किलिंग द कॉकरोचेस। अभी जो हिट हो गया है, आज की तारीख में हिट सबसे हिट है, बट अर्लियर देयर वाज दिस बेगॉन। और वो अभी कौन सी पिक्चर आई थी वो अजय देवगन वाली, सिंघम, सिंघम रिटर्न्स। सिंघम थी या सिंघम ही थी, सिंघम रिटर्न नहीं, सिंघम। वो उसमें जो प्रकाश राज को मारता है आखिर में, उसमें अशोक सराफ का डायलॉग है। 2 है, सिंघम रिटर्न्स है। अच्छा, सिंघम रिटर्न्स जो भी है, तो उसमें वो प्रकाश राज को नहीं रहे, सिंघम ही थी वो, मुझे याद है। ये लो, क्रिश बोलता है दबंग, ए इसको छोड़ के और एक कोई कहीं कहां, मतलब कहां से सच में आते हैं ये लोग। ये प्रणव कुठून आले रे हा? तो क्रिश मेहता, तू ओळखत नाहीस का त्याला? बरं असो, सिंघम रिटर्न में बंबई वाला सीन है पागल, मेरे को मालूम है। उसमें वो बनियान गैंग में घूमे थे। पिक्चर में बहुत ध्यान से देता है, पैसा पूरा वसूल करता है। मैं असो, सो इन दैट सिंघम मूवी, हाँ सही बात है आर्या, इन दैट दैट शोन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओम ओके, हाँ 3-3-6 वही वाला वही वाला। किसी को कॉकरोच को मारना रहेगा तो बेगॉन, नहीं तो पैरागॉन, उसमें वो डायलॉग है। तो वाई पैरागॉन, क्योंकि हमारे देश में पैरागॉन ही सच में ज्यादा यूज होता है। हमारे देश में घर में आप ऑब्जर्व कर लो, किसी दिन अगर कॉकरोच मिल जाए ना, तो हम लोग चप्पल उठाते हैं और सबसे पहले वो कॉकरोच को मारते हैं। हम लोग हेट उठाने नहीं जाते उस समय पे। दैट्स व्हाट वी नॉर्मली डू, यू नो। हमें किलर इंस्टिंक्ट इतने खतरनाक है ना कि ऐसी चीजों में तो हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटते। वेल एनी विच वेज, द पॉइंट इज व्हाट, द पॉइंट इज दैट व्हेन you are having, और when you are talking about the चप्पल इंडस्ट्री, प्रोमिनेंट ब्रांड्स हमको हमारे देश में चप्पलों में कितनी पता है? बाटा सबसे प्रोमिनेंट जो है, बाटा, पैरागॉन, रिलैक्सो। इसके अलावा किसी को कोई ब्रांड पता है प्रोमिनेंट? स्पार्क्स चप्पल में, हाँ ठीक है, स्पार्क्स। और एनी अदर ब्रांड दैट यू मस्ट बी नोइंग? स्केचर्स। क्रेश, तू सच्ची में एक क्रेश, स्केचर्स के चप्पल आते करे तू, इसको सच में छोड़ के आओ रे अभी। एक क्रिश में तेरे को रिमूव करूं क्या रे? स्केचर्स के चप्पल, स्केचर्स के शूज आते पागल, क्रिश ने पर्सनली बनवाए। हाँ, पूमा, आदिदास, क्रॉक्स, असो असो, ठीक है ठीक है ठीक है, नाइके, ये प्रोमिनेंट हो गए, राइट।
सब मिला के 10 ब्रांड, 20 दिए चलो तुम लोग को। हाँ, वाइल्ड क्राफ्ट के चप्पल, ए अपेक्षिता, तू वाइल्ड क्राफ्ट के शूज आते हैं मुझे पता है, वाइल्ड क्राफ्ट के बैग्स आते हैं मुझे पता है। इट इज बेसिकली इनटू द मल्टी टेरेन बिजनेस। नहीं ठीक है, आते होंगे, इसीलिए मैंने 20 ब्रांड कर दिया डायरेक्ट अपेक्षिता। आई डोंट वांट टू डिबेट ऑन दैट, बिकॉज उस पर डिबेट करना होगा तो फिर मेरे को अर्नब गोस्वामी को बुलाना पड़ेगा इधर। सो द, हाँ संस्कृति, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। सो द पॉइंट इज व्हाट, that if there are 20 brands in the chappal manufacturing, इसके अलावा तुमको पता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब similar business but which are not having the organization, which are not having the registrations like these large companies, which does not have the brand. ऐसे हमारे देश में, मेरे पास मेरा एक फ्रेंड है जिसका रिटेल चप्पलों का बिजनेस है, चप्पल जूतों का बिजनेस रिटेल में। दैट पर्सन वाज टेलिंग मी, कहता है मनीष भाई मेरे पास करीब करीब 120 ब्रांड के चप्पल जूते आते हैं, 120 ब्रांड का चप्पल जूता, जिसमें से हमको कितने पता है? 20। ये अगर पुणे या फिर महाराष्ट्र की ये सिचुएशन है कि जहां पे 100 ब्रांड प्रचलित है, वैसे ही रीजनल लेवल पे बहुत जगहों पे अलग अलग ब्रांड्स प्रचलित होते हैं, नोन होते हैं। तो कंसिडरिंग दिस फैक्ट, there must be at least 500 different brands. Those 500 different brands are giving the job to the people who are working in their respective region. And that's why you need the SSI. Because those are not the large scale, that's why we are not knowing about them. अगर वो लार्ज स्केल ब्रांड्स होते तो हमें आज पता होते। लार्ज स्केल में भी काफी सारे ब्रांड तो हमको खुद को नहीं पता है। जैसे अपेक्षिता ने कहा सर वाइल्ड क्राफ्ट के चप्पल आते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा कौन स्केचर्स के चप्पल आते हैं, एंड एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट देम। सो और लोगों को अभी भी डाउट है कि ये सच में आते होंगे या नहीं। बट द पॉइंट इज व्हाट, that if this is the situation, you go into the unorganized, unbranded section and you'll be finding n number of different brands in that. And that's where the difference comes, that these people, these SSIs create the lot of job opportunities, not only at the national level but also at their local level. Nowadays Mr. Modi is continuously making this kind of USP for him, that be vocal for local. And be vocal for local means what? You need to support these SSIs. Why? Because they're creating the huge employment opportunities, the job opportunities. SSI is the second largest industry which creates huge employment. Because it can be operated with a minimum amount of capital, SSI can run with the basic potential skills. This is a boost for a labor surplus country like India. तुम सूरत जैसी प्लेस पे चले जाओ, हर चौक में, हर कॉर्नर में तुमको वहां पे कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा मिल जाएगा। फर्स्ट वन इज लार्ज स्केल इंडस्ट्री बेटा, साथेज। ऑफ कोर्स लार्ज स्केल के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑलराइट, सो आप सूरत जैसी प्लेस पे चले जाओ, वहां पे हर बंदा कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। आप अहमदाबाद जैसी प्लेस पे चले जाओ, हर बंदा कुर्तीज या फिर वो जो नाइट गाउन्स होते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हर दूसरे घर में ये काम हो रहा है। If you go to the places like Hyderabad, you'll be finding every other house being making those chips. वो BMW नहीं, बालाजी मसाला वेफर्स, वो भी तो चिप्स ही होते हैं ना। सो वो चिप्स मतलब जो कंप्यूटर में लगने वाली चिप्स होती है, वो चिप्स एंड वेफर्स, वो वाले चिप्स एंड वेफर्स वो बनाते हैं। वो जो ऑरेंज ऑरेंज टाइप रस्टी कलर होता है जो कंप्यूटर के अंदर लगते हैं। दैट्स व्हाई हैदराबाद इज कॉल्ड अ सिलिकॉन वैली। Yes, for bangles also it is very much famous. So point is what, that they are having the businesses in their regional areas, and because of that they are creating the job opportunities there. Then they create the regional balance as well. कैसे? आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कौन से प्लेसेस हैं? इफ यू टेक इट आउट,
is the top most is Delhi. Industries की बात कर रहे हैं हम लोग. On the top is Delhi. Then comes Noida. Then comes Mumbai. Then go to Gurgaon. Then comes Pune. In the southern part, it is Hosur. Hosur is one of the Hosur. It's one of the prominent place for the automobile manufacturing in our country. TVS Motors, Ashok Leyland, Hyundai, they all are having their factories in Hosur. So these all companies are located at the places where they are getting the resources. Why you cannot find the industry being developed in the places like Nagpur and Amravati in Maharashtra? Why you do not find the industries being developed in Mau, in the places other than Mau in Madhya Pradesh when it comes to the sarees manufacturing? Why in Karnataka you find Bangalore being the prominent place for any and every kind of industry? The very basic reason behind that is the resources are available. बड़ी कंपनी क्या चेक करती है? बड़ी कंपनी देखती है कि मेरे लिए वहां पे एयरपोर्ट है क्या, मेरे लिए वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं क्या, मेरे लिए वहां पे अच्छे होटल्स हैं क्या, वहां पे मुझे लेबर कंटिन्यूअसली मिलेगा क्या? These kind of things is what is checked by the large घरी company. नाही ते तळ्यात गेलेली. बर. So this is what the large scale industries look after, but the local level SSI will look into what? The SSIs basically look into that whether I will be able to cater to the needs of the people in my area or not. तो वो उस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस्ड होता है, और वो जब उस पर्टिकुलर एरिया पे फोकस हो जाता है तो अपने आप उसका एरिया ऑफ बिजनेस भी चेंज हो जाता है. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस. ऑलराइट, कहां गया? है किधर है? आ गया. हाँ, स्क्रीन गायब हो गया था मेरा. सो for the purpose of having a good regional balance, you need the small scale industries to grow. In India, all regions are developed due to the lack of industrialization. SSI can be set up with minimum amount of capital. Small industries manufactures products using the simple technologies, locally available resources, material and labor. And that's why we need to be vocal for the local. But still इतना अनाउंसमेंट्स होने के बाद में भी हमको बेसिक से बेसिक कोई चीज की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो हम लोग अमेज़न पे जाते हैं. हम लोग अमेज़न पे जाएंगे, हर चीज को सर्च करेंगे और वहीं से ऑर्डर करेंगे. क्यों? अमेज़न है तो बेहतर है. दैट्स नॉट द केस. अमेज़न समझते हैं ना? हाँ. वेल, देन इट कम्स टू द इंक्रीज इन द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. क्योंकि आप लोकली जब चीजें जो इंटरनेशनली चल रही हैं, जो बहुत जगहों पे बन रही हैं, वैसी ही चीजें अगर आप लोकली भी बनाते हो तो इट बिकम्स लेस एक्सपेंसिव. क्योंकि आप रिसोर्सेस कम यूज कर रहे हो, इसलिए उसका कॉस्ट कम हो जाता है, और कॉस्ट कम होने की वजह से उसका सेलिंग प्राइस भी कम हो सकता है. दैट्स व्हाई यू नीड लोकली मेड प्रोडक्ट्स. इट इंक्रीजेस योर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. So the small scale industries enjoy the advantages of low cost of product, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं. अगर कैपिटल इंटेंसिव होता तो मशीनरी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वुड हैव इंक्रीज्ड, क्योंकि उतना इनका प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता. मैं 1 करोड़ की मशीन लगा के 10,000 यूनिट साल में बनाऊं, इसके कंपैरिजन में 1 करोड़ की मशीन लगा के 1 लाख यूनिट साल के बनाऊं. देयर इज अ बिग डील ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू. Why small scale industry is not producing 1 lakh units? क्योंकि उनके पास 1 lakh units को बेचने के लिए मार्केटिंग और ये सारा सेटअप नहीं है. लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या सोचती है? अब जब मुकेश भाई कोई डिसीजन लेते हैं तो मुकेश भाई डजंट टेक द डिसीजन ऑफ 2 करोड़ एंड 5 करोड़. मुकेश भाई क्या बोलता है? चलो नया बिजनेस चालू करना है, ठीक है, कितना 500 करोड़ लगाऊं, बेयर मिनिमम. मैं इससे कम पैसा नहीं लगाएगा. अभी रिसेंटली ही परचेज्ड अर्बन लैडर व्हिच मस्ट बी हिज चीपेस्ट बाय, आई बिलीव. अर्बन लैडर नाम की एक कंपनी थी, अगर आपको पता होगा तो, ऑनलाइन फर्नीचर कंपनी अर्बन लैडर.
Recently, Reliance has purchased it at what cost? 180 crore rupees. 180 करोड़ रुपए में कंपनी खरीद ली. एंड भाई साहब ऐसे ही करते हैं. ये भाई साहब कोई चम्मच कटोरी तो खरीदने जाएंगे नहीं. दिस पर्सन डायरेक्टली बाइज द कंपनी. ये बंदा शॉपिंग पे निकलता है तो 200 करोड़ एक साथ खर्च करके आता है. हम लोग 200 रुपए तक के खर्च नहीं करते एक साथ. मेरा तो कमाई 150 रुपए रोज है, मैं 200 रुपए कहां से खर्च करेगा? वेल एनी विच वेज द पॉइंट इज, रक्षिता इतने खतरनाक लुक दे रही है ना ये मास्टर ना, इतना मतलब ऐसे कैसे बात कर लेता है कि 150 रुपया, मतलब बट ये फैक्ट है, यू नो. तुम लोगों में मानना पड़ेगा मेरी बात, मैं तुमको एक्सप्लेन करेगा बाद में, तुम मानोगे मेरी बात. Most of the large scale industries have overtaken the small scale industry. No, not at all, Sanskriti. Agar most of the large scale industry would have taken over the small scale industry, then we would have wore the chappals only of Bata या Nike या Skechers या कौन सा था Wildcraft and kind of those. We would not have had the locally made chappals with us. वैसी कंपनीज बहुत चलती है. मैं कहूं मेरा पूरा बचपन लोकली मेड चप्पल्स के साथ गया हुआ है. मैं इतना क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि दैट्स अ प्रोमिनेंट एग्जांपल. इनफैक्ट मुझे याद है बाटा का चप्पल आया करता था कुछ 60 रुपए में. वो जो ब्लू कलर का बेस, व्हाइट कलर का टॉप और उसके ब्लू कलर की पट्टी, जो आजकल हम लोग बाथरूम स्लीपर करके यूज करते हैं जनरली. तो ये वाले जो चप्पल, ये वाले जो स्लीपर्स आया करते थे, वो बाटा के आते थे करीब करीब 60 रुपए में. और वहीं हमारे यहाँ अमरावती में जब मैं रहा करता था, a childhood stories, you know, lot many things that we have learned. तो उसी के बाजू में एक बंदा बैठा करता था और वो 15 रुपए में चप्पल बेचता था. और उसके साथ मेरी माँ निगोशिएट करती थी और उससे 12 रुपए में वो चप्पल खरीदती थी, क्योंकि तीन एक साथ खरीदती थी, तीनों भाई और बहनों के लिए छोटी छोटी चप्पल आते थे 15 और 20 रुपए में. यस. सो द नो साथी, दैट्स फाइन, दैट्स फैंटास्टिक, नो डाउट अबाउट इट. द पॉइंट इज व्हाट, 12 रुपए का चप्पल, मतलब मैं बाटा खरीदने जाऊं तो 60 रुपया, वो बंदा 1 रुपए का निगोशिएशन नहीं करे, वो 59.95 पूरे उसके 60 रुपए लेता था. और ये 12 रुपए, मतलब 12 इंटू 5, 60 रुपए में 5 चप्पल आ जाए हमारे. दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. तो ये जो इंडस्ट्री है ये आज भी है. फर्क सिर्फ इतना है कि ये 12 रुपए में नहीं बेचते हैं. आज की तारीख में उनके रेट्स बढ़ गए हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ लेबर बढ़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स बढ़े हुए हैं. बट द पॉइंट इज व्हाट, इवन टुडे दे आर कंपैरेटिवली चीपर. ऑफ कोर्स दोस फॉल अंडर द चीप कैटेगरी. दोस वोंट, मतलब वो चप्पल जो हम लोग घस घस के उसमें जो पीछे वाले साइड में छेद हो जाता था ना, जहां पे हमारा वो एड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एंकल, एंकल, हाँ, जहां पे हमारा एंकल होता है ना, हील, हील, हाँ, हील वो लड़कियां पहनती है ना, हम थोड़ी पहनेंगे. सो द वो जो हमारा एंकल होता है वहां पे वो छेद हो जाता था, तब तक हम लोग वो चप्पल यूज किया करते थे, काइंड ऑफ दैट. सो these kind of things even today work because they are increasing the competition. अब वो बंदे ने कंपटीशन दिया बाटा को, तब मेरी माँ जाके लोकली मेड चप्पल खरीद के आई थी. बिकॉज हाँ ठीक है, उस समय पे हमारी कैपेसिटीज भी कम थी, बट द पॉइंट इज व्हाट, दैट वाज द काइंड ऑफ फीचर, राइट? मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. those does not have the capital. जब पैसा ही नहीं है तो जितना लोकली मेड नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल होगा उस पे से हम लोग जीवन चलाएंगे. लाइक अगर आप कोंकण पट्टे में चले जाओ तो वहां पे आपको झाड़ू बनाने वाले बहुत मिलते हैं. Why? Because Konkan is the area where there is a huge amount of coconut production. तो कोकोनट प्रोडक्शन के बाद में जो कोकोनट ट्रीज के जो लीव्स गिरते हैं बड़े बड़े, उन्हीं लीव्स में से दे प्रोड्यूस द ब्रूम्स, व्हाट यू कॉमनली कॉल दीज डेज ब्रूम. ब्रूम वो झाड़ू होता है ना घर में, जो तुमने इस पीरियड में बहुत किया है. तो सर लॉकडाउन में तो हमने क्या क्या नहीं किया, आप क्या बताएं आपको. मतलब हमने, हमसे घर वालों ने जो जिंदगी में हमारी अपेक्षा नहीं थी वो सारी चीजें करवा ली. वेल एनीवेज, सो दे utilize the available natural resources and raw material from the local areas. Such use of local natural resources minimizes the cost of production into the reasonable price of goods.
आर्या, इसमें अब इज्जत निकालने वाली बात क्या है? हम लोग हमारे ही घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं और उसके बाद भी घर वालों ने तुमको पैसे दिए उसके, है ना? है, हाँ पता है, मेरे को है। तुम लोगों ने तो एग्रीमेंट के साथ में, मतलब मैं इतने दिन काम करूंगा उसको मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, या दिस काइंड ऑफ, जितने दिन मौसी नहीं आएगी मैं काम करके देगा मेरे को उतने मौसी के पैसे देना। दैट्स हाउ यू हैव डन द डील्स विद एट योर होम, यू नो। उसके बगैर तो सुबह नींद में से नहीं उठेंगे हम लोग। पैसे मिले नहीं बात अलग है, पर कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था। एनीवेज यू आर माइनर सो यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है शुरुआत से। तुमने मांगे थे वो बात अलग है, मिले नहीं वो बात अलग है। अच्छा, तुम सीधे बच्चे हो, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जलेबी की जैसे जैसे आड़े टेढ़े हैं? रुक रुक रुक, मैं घर पे बात करता हूँ फिर तू मेरे को बोलना हम सीधे बच्चे हैं, फिर घर से सब पता चल जाएगा मुझे कि कितने सीधे बच्चे हैं, बिल्कुल जलेबी के जैसे सीधे सीधे। नो, एनीवेज, नो दिस इज सीरियसली फैंटास्टिक। मुझे ऐसा, जब ऐसा मूड बन जाता है लेक्चर लेने का, बहुत मजा आता है। एनीवेज, and this is what is required, you need to have that feel of attending the session, seriously। मतलब वो नहीं तो हम लोग सिर्फ वो प्रवचन सुनने के लिए बैठे हो ना, तो फिर वो मजा नहीं आता है ना। हम लोग बैठे हैं, कुछ तो पढ़ के आए हैं। वेल, then it reduces the migration। what do I mean by migration? अब मैं बेसिकली अमरावती का बंदा, मैं आके पूना में सेटल हुआ। that means I migrated from my place to the new place in search of a better opportunity, because at my place the opportunities were available but not to the extent that I expected, that I wanted। मतलब मैंने अमरावती में प्रैक्टिस की है एक्चुअली। आई वाज देयर इन अमरावती फॉर 3 years after becoming chartered accountant। I practiced there, but my level of practicing, my level of services and the people's expectation there, that was not matching। And so I decided that I should leave and I should come to the place where there will be the value of services that I've been providing। बट अगर मुझे वहीं पे लोकली मेरे लेवल का काम मिल जाता, मुझे जैसा एक्सपेक्टेशन उस तरह का काम मिलता, तो आई वुड नॉट हैव कम टू पुणे। But thank God I came to Pune, that I met you. I'm happy about that, you know. So the point is what, that migrations will be stopped if the small scale industries are supported, because वो local labor जो है उसी को hire करेंगे। मतलब वहां का labor वहीं पे retain हो जाएगा, वहां के resources वहीं पे required हो जाएंगे, and by that way those small scale industries will stop, will reduce the migration from one place to another, what you call as brain drain। जैसे हम लोग अमरावती जैसे प्लेस पे बैठा करते थे, वहां से हमारी थॉट प्रोसेस होती थी कि हम लोग पूना जाएंगे, मुंबई जाएंगे, वहां जाके सेटल होंगे। उसी तरह से जब मैं पूना आया तो यहाँ पे मैंने लोगों से सुना कि पुणे और मुंबई में बैठने वाला बंदा कहता है मैं अमेरिका जाएगा, मैं कनाडा जाएगा। अरे हद होगी यार। तो हम लोग हमारा टाउन छोड़ के यहाँ पे आए और ये लोग तो मॉडल टाउन में चले जा रहे हैं क्योंकि इनको लंबरगिनी चाहिए। वो उसी में है ना कुछ, लंबरगिनी मॉडल टाउन, समथिंग लाइक दैट। वेल एनीवेज, मैं कुछ भी बोलता हूँ गुनैन ऐसे सिर पे आते रहता है, यार ये मास्टर कहाँ से कहाँ लेके जाता है हमको। नो, वो गाना है ना, बहुत बढ़िया गाना है। मैं तो जब भी वो गाना लगता है ना, कार चला रहा होता हूँ, मैं फुल वॉल्यूम पे सुनता हूँ। एनी विच वेज, सो इट रिड्यूसेस द माइग्रेशन, इट सपोर्ट्स द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब बजाज ऑटो हर चीज, उनकी गाड़ी को लगने वाली हर चीज खुद नहीं बनाती है। बजाज ऑटो आउटसोर्सेस देयर स्मॉलर एक्टिविटीज, देयर प्रोडक्ट्स, देयर सर्विसेज। जैसे बजाज ऑटो क्या करता है, बजाज ऑटो कहता है मैं मेरे मशीन पे फोकस करेगा, मैं मेरे इंजन पे फोकस करेगा, मैं इंजन में और इवॉल्वमेंट और रिसर्च करेगा और डेवलपमेंट करेगा। बट इसके अलावा जो भी चीजें बनानी है, जैसे वो सीट कवर हो गया या सीट हो गई गाड़ी की, या फिर वो बजाज को अगर हेडलाइट बनवाना है तो हेडलाइट दे डोंट मैन्युफैक्चर देमसेल्व्स, दे गेट इट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द एंसिलरी यूनिट। अब वो एंसिलरी भी क्या करती है आजकल, उसमें भी जो माइक्रो पार्ट्स लगने वाले थे वो और किसी और को देती है। And like this, there is the support to the large scale industry by the small scale industry। So maximum large scale industries depend upon the small scale industries। मेरे कई सारे क्लाइंट थे जो मेरे क्लाइंट इन द सेंस, जब मैं बॉस के पास काम, जब मैं आर्टिकलशिप किया करता था, वहां पे there were these clients who would supply these their products to the car manufacturing companies। वो कास्टिंग्स जो लगती हैं, गेट के लिए लगता है, डिक्की के लिए लगता है, वो कास्टिंग्स बना के बेचते थे। So they
So large scale cannot work without small scale. Small scale has the big support of the large scale. So they work interdependently and not independently. It develops the new entrepreneurs. अगर हम लोग स्मॉल स्केल को सपोर्ट नहीं करते तो बिग बास्केट नहीं होता. अगर स्मॉल स्केल को सपोर्ट नहीं होता तो फ्लिपकार्ट नहीं होता. ये छोटे छोटे लेवल से धीरे. तुमको पता है फ्लिपकार्ट का एक्चुअल बिजनेस कहां से स्टार्ट हुआ था? दे स्टार्टेड सेलिंग द बुक्स ऑनलाइन. वहां से इनकी कहानी स्टार्ट हुई कि हम लोग ऑनलाइन सिर्फ बुक्स बेचेंगे. और वो बुक्स बेचते बेचते आज अमेजॉन जैसी कंपनी को टक्कर दे रहे हैं. That level of company is what that has become. So all in all, this is how the small scale becomes the large scale, and it develops the new and better entrepreneurs in the society. So that is it about the importance of the small scale. Tomorrow at 8:15, we are going to start with the advantages of small scale industries. We'll meet tomorrow at 8:15. Thank you. Hopefully, you're liking the sessions of OCM, and you have more and more attendance on the live basis. That becomes more easier and more fun also. Yes, we'll meet. Thank you.